रिप्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो में आपका प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस हो गया था, तो आप प्रीवियस वीडियो में लिंक में जाके आप वो पढ़ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या क्या इवेंट है, तो इस इवेंट को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है आपका इवेंट। अगर प्रोसेस पूछा जाए तो आप बोलोगे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, then fusion of male gamete and female gamete, then zygote formation, then embryo formation and then development of an organism। ये था आपका प्रोसेस। Now we are discussing the event of sexual reproduction। As we know, the event is classified into 3 groups। The first is pre-fertilization, second is fertilization and third is post fertilization। Now we are discussing the pre-fertilization event। Pre-fertilization means, this word indicates that the process before the fertilization, means formation of male gamete and female gamete। Again we divide the pre-fertilization event into 2 types or 2 classification। For better understanding, we are dividing the pre-fertilization into 2 steps। The first is gametogenesis and second is gamete transfer। See, the first is gametogenesis and second is gamete transfer। So first of all we should discuss the gametogenesis। Gametogenesis means formation of male gamete and female gamete, and we know that male gamete is sperm and female gamete is ovum। As we earlier discussed about the gamete, what is gamete? Gamete is a reproductive cell which help in reproduction। So there is formation of male gamete and female gamete। The second step is transfer of gamete। Transfer of male gamete means, first is male gamete, second is female gamete। हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को नजदीक लाना है ताकि वो फ्यूजन हो पाए। मेल गैमेट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मोटाइल रहता है और फीमेल गैमेट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मोटाइल। मेल गैमेट इज मोटाइल whereas female gamete is non-motile। So in pre-fertilization event there is 2 steps। The first is gametogenesis, in which formation of male gamete and female gamete। The second step is transfer of gamete, in which male gamete is motile and female gamete is non-motile। So transformation is completed of gamete। Now we are coming in next step, next classification or next events, that is fertilization। This is the main step in the sexual reproduction, that is fertilization। Fertilization means after transferring the gamete, that is male gamete and female gamete, we have to fuse that। We have to fuse both gamete, male gamete and female gamete। So fertilization defines that fusion of male gamete and female gamete to formation of zygote। We have to clear here that after fusion of male gamete and female gamete, there is formation of zygote।
So thereafter the fusion of male gamete and female gamete, fertilization occur. In this fertilization there is formation of zygote. So again we are dividing the fertilization into two steps. As we know, there is two type of fertilization. The first is external fertilization, second is internal fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है कोई भी फर्टिलाइजेशन मीन्स कोई भी फ्यूजन अगर आपके बॉडी के बाहर हो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का. एक फीमेल फ्रॉग अपनी एग को वाटर में छोड़ दी, देन मेल फ्रॉग आके अपने स्पर्म को वाटर में छोड़ दिया. थोड़े देर के बाद वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर इज थ्रेटन टू द लाइवलीहुड. मीन्स वो कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा रहेगा या उससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. हो सकता है वो कोई नए ऑर्गेनिज्म या कोई भी नए एनिमल या फिश कोई भी उस स्पर्म को या ओव्यूम को खत्म कर दे, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो. तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपका? फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, एल्गी हो गया, एक्सेट्रा. नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन ह्यूमन बीइंग internal fertilization occur. In mammal, most of the mammal internal fertilization occur. The fertilization which occur inside the body is known as internal fertilization. Internal fertilization में copulation का होना बहुत जरूरी है. Copulation means ejection of sperm. Copulation means ejection of sperm. जब भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट में आता है उसके बाद आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. So pre-fertilization and fertilization is completed. Now we will discuss the post-fertilization. What is post-fertilization? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लास्ट इवेंट जो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स द टू स्टेप. अगेन देयर इज टू स्टेप इन दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. दैट इज फर्स्ट वन इज zygote formation, second one is embryogenesis. Now we are discussing what is zygote formation, how this zygote is formed. In pre-fertilization, there was the fusion of female gamete and male gamete. After fusion of male gamete and female gamete, fertilization occurred. And I told that in fertilization step, after completing the fertilization, there is formation of zygote. Means as in previous video I told you that male gamete and female gamete is a haploid not diploid. That is male gamete plus female gamete means ये भी आपका हैप्लॉइड सेल है और ये भी आपका हैप्लॉइड सेल है. अब इसका होता है फ्यूजन. फ्यूजन होने के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का. सो जाइगोट इज डिप्लॉइड सेल. जाइगोट इज डिप्लॉइड सेल. जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. अब आपका जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ही फॉर्मेशन होता है आपका एम्ब्रियो का.
सो जायगोट जब एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है उसी प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एक टाइप का फर्टिलाइज्ड एग है। एम्ब्रियो इज ए फर्टिलाइज्ड एग। सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो आपका इवेंट, प्रोसेस सब कुछ डिस्कस हो चुका है रिप्रोडक्शन में। अब आपका एक पॉइंट बचा हुआ है, एक टर्म बचा हुआ है, यू कैन से इट एज ए टॉपिक, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस मीन्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब किसी इंडिविजुअल में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में आपका बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आपका दो टाइप्स का है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल में एक कैटेगरी आएगा जब दोनों सेक्स मीन्स मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस आपका होता है हनी बी में, मधुमक्खी में जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एक टाइप का पार्थेनोजेनेसिस है। मीन्स मेल हनी बी फीमेल हनी बी नहीं होके एक ही हनी बी में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही इंडिविजुअल में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल का एग्जांपल है आपका कुछ मैमल जैसे रैबिट। रैबिट में हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज्ड ओव्यूम डालते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हम आर्टिफिशियल डालते हैं जिसके कारण से अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है आपका। इसी तरह जो नेचुरल है, नेचुरल में भी पहले ही नेचुरली इसमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हो जाता है। हम कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, ना ही इंटरनली फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना ही एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूम प्रेजेंट है इसमें, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। Which type of parthenogenesis? That is natural parthenogenesis. So the example of natural parthenogenesis is honeybee. Honeybee is a natural parthenogenesis. Then the second classification is artificial. Artificial में हम लोग करते हैं, artificially हम fertilized ovum डालते हैं ताकि अंदर में फर्टिलाइजेशन हो स्पर्म के साथ और वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे। इसका एग्जांपल हो सकता है रैबिट। सो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जो सबसे बड़ा टॉपिक है और अच्छे से हमें समझना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझने से पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग जो हम स्टार्ट करेंगे आपका, वो समझने के लिए हमें पहले से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा होना चाहिए। उधर आपको डायरेक्ट जायगोट आएगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो आएगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम पहले से पढ़ेंगे जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन।